علامہ خادم حسین رضوی، گود سے گور تک، ان کی تمام سرگرمیاں ایک مجموعی جائزہ۔ امیر المجاہدین، تحریک فدایان ختم نبوت، تحریک رہائی ممتاز قادری، محافظ ختم نبوت، تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے روح رواں، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، حافظ کلام اقبال، تجوید و قرأت اور صرف و نحو کے ماہر، عربی اور فارسی زبانوں پر بھرپور دسترس رکھنے والے جناب حافظ القاری علامہ خادم حسین رضوی، نکا توت، تحصیل پنڈی گیپ، ضلع اٹک میں مورخہ 22 جون 1966 کو حاجی لال خاں کے ہاں پیدا ہوئے، جو کہ زمیندار تھے اور آوان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آوان قوم کا شجرہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ ابتدائی تعلیم موضع نکا کلاں، نکا توت میں حاصل کی۔ پھر 1974 میں 8 سال کی عمر میں آپ نے دینی تعلیم کے حصول کے لیے پہلے دینا اور پھر جامع مسجد عیدگاہ جہلم سے اکتساب فیض کیا۔ وہاں حافظ غلام یاسین ان کے استاد تھے۔ 1978 میں جب کہ وہ قرآن حفظ کر چکے تھے، انہوں نے لاہور جانے کا ارادہ کر لیا۔ 1980 میں مسجد وزیر خان لاہور میں قاری منظور حسین صاحب سے ملے، جنہوں نے انہیں درس نظامی کے لیے جامعہ نظامیہ رضویہ لواری گیٹ لاہور میں داخل کرا دیا۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی، مفتی عبداللطیف نقشبندی، علامہ محمد رشید نقشبندی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، حافظ عبدالستار سعیدی اور علامہ محمد صدیق ہزاروی جیسے نامور علماء کرام کے زیر سایہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ 1988 میں دورہ حدیث کی تکمیل پر آپ کو دستار فضیلت عطا کی گئی۔ عملی زندگی میں ابتدا جامعہ نظامیہ رضویہ لواری گیٹ لاہور سے مدرس کی حیثیت سے اپنے آغاز کیا، جبکہ باقاعدہ طور پر 1993 میں جامع مسجد مکی میں، جو کہ داتا دربار سے قریب ہی واقع ہے اور محکمہ اوقاف کی سرپرستی میں چل رہی تھی، میں بطور خطیب تقرر ہوا اور تنخواہ کم و بیش 20,000 روپے کے قریب مقرر ہوئی۔ مذہبی معاملات اور خصوصاً ختم نبوت، ناموس رسالت اور توہین رسالت جیسے اقدامات پر بہت سخت گیر موقف رکھتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تحریر و تقریر میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ روانی سے بولتے تھے اور کھل کر بولتے تھے۔ اس سلسلے میں بعض حکومتی اقدامات جو کہ روح اسلام سے متصادم تھے پر سخت موقف اپنایا اور حکومت وقت پر شدید تنقید کرتے ہوئے جلسے جلوس اور ریلیوں وغیرہ کی قیادت کی۔ چنانچہ حکومت نے انہیں نوکری سے پہلے معطل کیا اور پھر ڈسمس کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے پھر علامہ صاحب سے رابطہ کیا کہ واپس جامع مسجد مکی میں آ جائیں، لیکن آپ نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یتیم خانہ چوک لاہور کے قریب مسجد رحمت للعالمین میں آپ نے پھر اپنے فرائض سنبھال لیے، جہاں ان کو 15,000 روپے ماہانہ معاوضہ ملتا تھا۔ 1984 میں چچا کی بیٹی سے آپ کی شادی کر دی گئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا حافظ صاحد رضوی اور چھوٹا بیٹا حافظ محمد انس ہیں۔ انہوں نے علامہ صاحب اور حکومت کو کچھ ایسے حالات ہوئے کہ علامہ صاحب اور حکومت آمنے سامنے آ گئے۔ غازی ممتاز قادری نے گستاخانہ گفتگو اور آسیہ ملہونہ کی طرفداری کرنے کی پاداش میں اس وقت کے گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور اپنی گرفتاری دے دی۔ حکومتی خوف کی وجہ سے کوئی بھی ممتاز قادری کے میت پر راضی نہ تھا۔ انہی حالات میں پہلی بار علامہ خادم حسین رضوی نے ممتاز قادری کی حمایت اور رہائی کا نعرہ مستانہ بلند کر دیا اور زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کر دیا کہ عاشق رسول غازی ممتاز قادری نے جو کیا وہ عشق رسول کا بہترین نمونہ ہے، لہذا غازی صاحب کو باعزت رہا کیا جائے۔ تحریک رہائی ممتاز قادری کی بنیاد رکھی،
जलसे जुलूस और रैलियाँ वगैरह निकाली, आवाम के मजहबी जज्बात को महमीज किया और गाजी की रिहाई के लिए सर पर कफन बांध कर जिद्दोजहद शुरू कर दी। इस सारी जिद्दोजहद के बावजूद मुमताज़ कादरी को 2016 ईस्वी में फांसी दे दी गई। 17 मार्च 2006 ईस्वी को एहतजाज करने पर आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी दौरान 2008 ईस्वी में आपके वालिद मोहतरम हाजी लाल खान खाला की किसी जा मिले। 2009 ईस्वी में अपनी वालदा मोहतरमा के चेलम से वापस आ रहे थे कि तलागान के करीब उनकी गाड़ी एक मोड़ मुड़ते हुए नीचे जा गिरी। ये हादसा ड्राइवर की गुनूदगी या नींद की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से अल्लामा साहब के सर पर शदीद चोटें आईं और धड़ से निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। यूँ अल्लामा साहब अगली सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए, लेकिन ये माजूरी उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को कम न कर सकी और वो एक नए हौसले के साथ फिर मैदान अमल में कूद पड़े। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को शोला ज्वाला बना दिया। ताहम मौलाना अशरफ आसिफ जलाली और अफजल कादरी साहब से इख्तिलाफात की बुनियाद पर उन्होंने एक नई तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए सीना सपर हो गए। 2016 ईस्वी में तौहीन मज़हब के कानून के हक़ में एक रैली की क़यादत की। हुकूमती लाठी चार्ज के बाद उन्हें गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल कर दिया गया। 2017 ईस्वी में अमली तौर पर सियासत के मैदान में दाखिल हुए और 2018 ईस्वी में पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के झंडे तले जनरल इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में वो कोई बहुत बड़ी कामयाबी तो हासिल ना कर सके, तहम उन्होंने मजमूई तौर पर कुछ 6.5 लाख के करीब वोट हासिल किए। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी पार्टी बनकर उभरी। 2016 ईस्वी से 2020 ईस्वी तक यानी अपनी वफात तक वो एक दबंग और नाकाबिल शिकस्त रहनुमा के तौर पर पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। नवंबर 2017 ईस्वी में नवाज़ हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के कानून में एक शिक को तब्दील कर दिया, जिस पर मुल्क के मजहबी व दीनी हल्के सरापा एहतजाज बन गए। चनांचे अल्लामा साहब हुकूमत के सामने सीसा पलाई दीवार बन गए और फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दे दिया। हुकूमत को घुटने टेकने पर आपने मजबूर कर दिया। नतीजतन जाहिद अहमद वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ख़त्म नबूवत की शिक में तब्दीली ख़त्म कर दी गई और अल्लामा साहब को तमाम अखराजात भी अदा कर दिए गए। इस तरह ये धरना ख़त्म कर दिया गया। 2018 ईस्वी में आसिया मलहूना की रिहाई के ख़िलाफ़ रैली निकालने पर न सिर्फ अल्लामा साहब को बल्कि उनके ख़ानदान के तकरीबन 200 अफराद को जेल में डाल दिया गया, जिनमें से 90 साल उनके मामू भी शामिल थे। जेल में उनको कोई रियायत हासिल ना थी, बल्कि इन्हें मजबूर किया जाता रहा कि वो माजरत खाना बयान दे दें तो फौरी तौर पर आपको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन आपने इनकार कर दिया और कहा कि नामूस रसालत की पहरेदारी के लिए ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। मई 2019 ईस्वी को आपको रिहा कर दिया गया। फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके कार्टून बनाने के ख़िलाफ़ चौथा और आखिरी धरना 15 नवंबर 2020 ईस्वी को दिया गया और मुतालबा किया गया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए। नीज़ ये कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। तबीयत नासाज थी, बहुत सख्त तबीयत ख़राब थी, बुखार बहुत सख्त हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़ा हुआ और सख्त बुखार होने के बावजूद इस हवाले से धरना दे दिया और अपने मुतालबे के हक़ में जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू कर दिया। हुकूमत वक़्त ने बेदरेक सख्त लाठीचार्ज किया और बेपनाह आंसू गैस के गोले फायर किए। हर तरफ धुआं ही धुआं था और खून ही खून था। बदतरीन आंसू गैस की शेलिंग से अल्लामा साहब की तबीयत शदीद बिगड़ गई और उनको सांस की बदतरीन तकलीफ़ शुरू हो गई, जबकि उनको सांस आना बंद हो रहा था। धरने से वापसी पर अपने घर पहुंचे तो तबीयत बिगड़ती ही चली गई और उनको सांस लेने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जब तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई तो आपको शेख जायद हस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन हस्पताल पहुंचने से कबल ही आपकी रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज़ कर चुकी थी। ये 19 नवंबर
2022 ईस्वी का दिन था। उस वक़्त उनकी उम्र मुबारक 54 साल थी, 54 ईयर्स। अल्लामा साहब की वफ़ात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उनके चाहने वाले दाड़े मार मार कर रोने लगे। पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग इस आशिक रसूल की ज़ियारत और जनाजा में शिरकत के लिए चल पड़े। लाहौर का मीनार पाकिस्तान तारीख़ में पहली मरतबा भरा हुआ मुकम्मल नज़र आया, बल्कि मीनार पाकिस्तान से चारों तरफ कई कई किलोमीटर तक लोग मौजूद थे। मुरीद के तक लोगों की लाइनें लगी हुई थी और कोई समझ नहीं आ रही थी कि किस कदर दुनिया जो है, पूरा लाहौर भरा हुआ था। जो ये सब लोग जनाजे में शिरकत करना चाहते थे, दुनिया भर के मीडिया ने उनके जनाजे के मनाजर अपने कैमरे में महफूज कर लिए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम तादाद 1,70,00,000 थी, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह तादाद 2 करोड़ या ऐसे ज़्यादा थी। 2 करोड़ अफराद की जनाजे में शिरकत आज तक दुनिया की तारीख में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा गया। अल्लामा साहब का चेहरा आखिरी वक्त तक तरोताज़ा और एक रूहानी और मलकूती सी मुस्कुराहट थी जो उनके चेहरे पर चस्पा हो गई थी, सबत होकर रह गई थी। 21 नवंबर 2022 ईस्वी को इन्हें मदरसा अबू ज़र गफ़ारी में सपुर्द खाक कर दिया गया। ज़िला अटक के एक छोटे से गांव में एक गरीब घराने में पैदा होने वाला बच्चा आज बड़े बड़े बादशाहों और शहनशाहों की मकबूलियत को पीछे छोड़ चुका था। और यह मकबूल जान के बकौल जनाजे मुल्हिदों और जमहूरियत परस्तों के लिए हक़ का मयार नहीं होते, लेकिन इस बात की तस्दीक ज़रूर करते हैं कि आशिक रसूल अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के परवाने बेनज़ीर बटोर इमरान खान से ज़्यादा होते हैं। और इस बात का गवाह मीनार पाकिस्तान है, जिसने लामहदूद दुनिया को, नाकाबिल शुमार दुनिया को अपने दिलों में देखा है। 19 नवंबर को डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली को रिहा कर दिया गया तो उन्होंने अल्लामा साहब को शानदार खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उनकी नबी पाक से मोहब्बत उनकी ज़िंदगी भर का असल असासा है। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि आज बड़े दुख का दिन है, क्योंकि एक ऐसा शख्स चला गया जो नामूस रसालत का अलम बुलंद किए मजबूती से और साबित कदमी से खड़ा था। खुदाया रहमत कनद ई आशिकाने पाक तीनतरा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।